Okay, so hello everyone, very good evening. मेरी आवाज़ आई होप आ रही है। हुसैन कैसे हैं आप? Yes, yes, I'm all fine, sir. How are you, sir? I am also good, Hussam. So I think we can wait for 1 minute for the other students. Okay, Yes, sir. and we can start. Till then, if you have any kind of you want to ask any kind of question with regard to No, our lecture, you can ask. no, this is my personal question regarding PhD. I have just completed LL Okay. and I applied in two universities for PhD entrance. However, I was not prepared for that this topic for the research. As I am a government employee, I'm a government Mm-hmm. law officer in Air Force. Mm-hmm. I'm serving. I'm posted in Jaipur, and the Okay. location of the university from where I wish to pursue PhD, was in Uttar Pradesh, near Bareilly. Mm-hmm. So I think if you could guide me that what should be my research topic in that So aspect. first of all, I just wanted to know, in which area you are doing your masters, like criminal law, commercial law. What is I, your I, have, interest? I have done in criminal law, Criminal criminology, law. criminology. Yes. Okay, so in criminal, I have lots of topic like you can work in a comparative study with what are the Okay. rights given to the victim in old criminal law and new criminal law. You can so I do one thing. I will send you some kind of topic today, and you can just check this out, and we'll discuss like over the call or like message. I could text you personally. There's one more Yes, yes, query. As I yes. am a I will government help you out in this. online, There is no thank you. issue. I will help you. That's so kind of you. Okay, sir. Then this is one more query that I am a government employee, Mm-hmm. and due to my service restriction, I have to visit from the move place to place. I am being transferred after 1 and 2 years Mm-hmm. regularly. So, is it Mm-hmm. possible that I can do this? I can pursue for the PhD because Pursue I PhD. from that Actually, exact location. there is a new course. New curriculum has been launched by UGC that whoever is doing their like job, they can pursue a like it is like distance PhD something kind of. Okay, okay. Okay, so But you can enroll in that. Like in Chennai, there are the various university, and in UP there are various university. They like ask you only to come in exam, and yeah, they will ask you to like you have to give just examination and okay. other things Like like you have to submit your different APH. universities are providing the online coursework classes, but some Yes, of yes. No, but universities, this is not online. This is like you are doing your job, so you are not regular, but you are doing your PhD in non-regular. Like it is like something okay, when you are enrolled in a job, you can do a non-regular PhD. In non-regular PhD, you have to just like you have to give exam of coursework and you have to submit your thesis. That's it. okay, You don't need to like attend the classes and all. okay. So I would seek your help when I am Yes, 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 definitely. I will in help you December in exam will be I will conducted. Then also I will seek your help. I can also connect with you with some of my friends who are doing this kind of PhD, so they Okay, will okay, help you in getting admission and all. okay. So Okay. nice. Thank you, sir. Okay. Thank you. चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग जो है मुस्लिम लॉ में जो मैरिज को पढ़ रहे थे उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। मैरिज में हमने एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी को समझा था। दैट इज लाइक एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी का मतलब कि देयर आर सम काइंड ऑफ रिलेशन विथ whom ए मुस्लिम मेल कैन नॉट मैरी। और कैसे वो रिलेशन है? वो रिलेशन है बाय ब्लड, बाय मैरिज और बाय फोस्टरेज वाला पॉइंट कि मतलब किसी माँ ने एक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया है तो माँ उसकी फोस्टर मदर हो जाती हैं और फोस्टर मदर के साथ उनकी सिस्टर के साथ उनकी जो डॉटर हैं उनके साथ जो है वो बच्चा अब जो है क्या कहते हैं उसको ये नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीजें हमने कल कवर कर ली थी। आज जो हम लोग इसके आगे के टॉपिक को, इसके आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे। मतलब जो इसके बाद की जो तीन कैपेसिटी है दैट इज आपकी रिलेटिव, प्रोहिबिटरी और डायरेक्टरी। ठीक है,
तो रिलेटिव क्या होती है, प्रोहिबिटरी क्या होती है, डायरेक्टरी क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे पहली बात। दूसरा कि इसमें अगर मैरिज होती है तो वेदर दैट मैरिज विल बी वैलिड, वेदर दैट मैरिज विल बी वॉइड, वेदर दैट मैरिज विल बी इरेगुलर, उसको भी मैं एक एक पॉइंट पे आपको बताऊं, तो उसको साथ में नोट करते हैं, क्योंकि यहाँ से ना आपके मैरिज पे सवाल जो आते हैं वो यहीं से आते हैं कि इस टाइप की मैरिज है तो क्या होगी, वैलिड होगी, वॉइड होगी, इस टाइप की मैरिज है तो क्या होगी, है ना। तो इस टाइप की चीजें नोट करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला रिलेटिव। तो रिलेटिव में कुछ देयर आर सर्टेन सिचुएशन, उसमें एक पर्सन जो है मैरिज नहीं कर सकते। क्या है? पहला है अनलॉफुल कंजंक्शन। अनलॉफुल कंजंक्शन का ये मतलब होता है कि दो पर्सन एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड हैं जिनमें अगर एक का जेंडर चेंज किया जाए तो वो दूसरे से शादी नहीं कर पाएगा। मतलब पॉइंट ये है कि एक मेल है हमारा, ठीक है, इसको जो है एट वन टाइम 4 मैरिज अलाउड है, ठीक है, 4 मैरिज अलाउड। तो ये उन दो लोगों से एक साथ शादी नहीं कर सकता जो दो लोग एक दूसरे से कंसेंगुइनिटी वाला रिलेशन, कंसेंगुइनिटी मतलब बाय ब्लड, ये वाला रिलेशन, इस रिलेशन में है। इस रिलेशन में कहने का मतलब है कि एक डॉटर है, एक मदर है, ठीक है, एक लड़की है, मतलब जो बेटी है, और एक उसकी माँ है। अब एक लड़का इन दोनों से एक टाइम पे शादी नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि लड़की से भी शादी कर ले, उसकी माँ से भी शादी कर ले। अब अगर मान लिया लड़की का जेंडर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, ये इसके फादर हो जाएंगे, मतलब सॉरी, ये इसका लड़की का जेंडर हमने चेंज कर दिया, इसको सन बना दिया फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक मिनट के लिए, तो ये एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। चूंकि ये एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों से एट वन टाइम पे जो है वो पर्सन शादी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसी मैरिज क्या होगी? ऐसी मैरिज जो है आपकी अनलॉफुल कंजंक्शन में आएगी और ये इरेगुलर होगी। अब ये मैरिज वैलिड कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो मान लीजिए किसी ने एक डॉटर से शादी करी, ठीक है, अब डॉटर से उसका डिवोर्स हो गया, ठीक है, या डॉटर की डेथ हो गई, तो अब इसकी माँ से इसकी शादी हो सकती है, ठीक है। तो दैट दिस मैरिज इज इरेगुलर अंडर सुन्नी लॉ, बट वॉइड अंडर शिया लॉ, ठीक है। शिया लॉ कहता है कि भाई दो लोग ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं जो कि कंसेंगुइनिटी में आते हैं और उनमें से किसी एक का भी जेंडर हमने चेंज किया। फॉर एग्जांपल चलिए माँ बेटी नहीं लेते हैं हम लोग, दो बहनें ले लेते हैं, ठीक है, दो सिस्टर हैं, उनसे एक लड़का शादी नहीं कर सकता एट वन टाइम, क्योंकि अगर मान लीजिए एक का भी जेंडर चेंज किया जाएगा तो एक भाई हो जाएगा, एक बहन हो जाएगी, तो भाई बहन एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, है ना, ये नहीं कर सकते। तो इसलिए वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, उनका ऐसा रिलेशन है। अगर किसी एक का जेंडर चेंज करेंगे तो आप भी उस दोनों से एट वन टाइम शादी नहीं कर सकते, मतलब एक ही टाइम पे वो दोनों उस लड़के की बीवी हो, ये चीज नहीं पॉसिबल। एक से शादी किया, उसकी मौत हो गई, तो दूसरे से आप कर सकते हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम, या फिर कह लें सब्सिक्वेंटली, कि पहले एक से शादी करी, पहले माँ से शादी कर ली, फिर उसकी बेटी से शादी कर ली, या पहले एक बहन से शादी करी, बाद में दूसरी बहन से भी शादी कर ली, मतलब दोनों एट द सेम टाइम कैन नॉट बी अ वाइफ ऑफ वन सिंगल मेल पर्सन हु आर कम इन द रिलेशन ऑफ कंसेंगुइनिटी विद ईच अदर। और अगर किसी एक की भी मैरिज किसी एक का भी अगर हम जेंडर चेंज करें तो वो दूसरे से शादी नहीं कर सकते, मतलब वो दूसरों की हम बात करें जिन दूसरों से ये पर्सन शादी करने जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर दूं, क्योंकि कंसेंगुइनिटी वाला मुझे ही पहले बहुत कंफ्यूजन होता, तो हो सकता है आप लोग को भी हो। सिंपल सी बात ये है इसमें कि भाई दो लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से इस रिलेशन में आते हैं, मान लीजिए दोनों ये फीमेल हैं, ठीक है, इनमें से दोनों इस रिलेशन में आते हैं कि अगर इनमें से किसी को भी मेल कर दिया जाए, है ना, तो ये एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, ठीक है, ये इससे शादी नहीं कर सकता, ये इससे शादी नहीं कर सकती, ये ऐसे रिश्ते में आते हैं, ठीक है। मतलब वही होता है कि एक दूसरे के भतीजी हो गए, माँ बेटी हो गए, बहन बहन हो गई, है ना, माँ और बेटी, ये सारी चीजें से मैंने बताया। तो इससे एक ही पर्सन जो हमारा मान लीजिए XYZ है, ये एक ही टाइम पे इन दोनों से शादी नहीं कर सकता। कहने का पॉइंट ये है, कब कर सकता है? अगर करता है तो मैरिज इरेगुलर होगी। कब कर सकता है? जब एक से किसी से शादी करी इसने और इसकी डेथ हो गई हो या इससे इसका डिवोर्स हो गया, तो ये फिर दूसरे से शादी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये मैरिज अंडर सुन्नी लॉ इज इरेगुलर, क्योंकि देयर इज अ चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस मैरिज इन द फ्यूचर, है ना, किसी की डेथ हो गई, किसी के साथ डिवोर्स हो गया, तो सुन्नी जो कहता है कि ये इरेगुलर होगी, क्योंकि ये जो बार है हमारे ऊपर, वो बार को हम हटा सकते हैं। शिया कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैरिज जो है
वो वॉइड होगी। ठीक है, शिया में इर्रेगुलर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो कभी कभी एक सा सवाल आ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ मैरिज इज लाइक प्रोवाइडेड अंडर शिया लॉ। तो शिया लॉ में 3 तरह की मैरिज हैं, वॉइड, वैलिड और मुता। और मुता मैरिज भी सिर्फ और सिर्फ इतना आशार्य है, जो भी मैं और आप लोगों को बताऊंगा, बट पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा जब आते रहेगा तो उसको रिपीट करने से चीजें याद रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। देन दूसरा है पोलीगैमी और मैरिंग ए 5th वाइफ। ठीक है, एक मेल को 4 शादी अलाउ है, वो 5वीं नहीं कर सकता। बट अगेन दिस इज इरेगुलर, है ना, कि अगर वो 5वीं शादी करता है तो मैरिज क्या होगी, इरेगुलर कंसिडर की जाएगी। 5वीं शादी वो कब कर सकता है, जब उसकी कोई एक बीवी की डेथ हो जाए या किसी एक बीवी से उसका डिवोर्स हो जाए। तो मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4th वाइफ है उसकी। ठीक है, इनमें से किसी की भी डेथ, तो ऐसा नहीं कि ये पहले वाली मरेगी तब ये 5वीं ऐड होगी यहाँ पर, नहीं, चारों में से कोई एक की भी डेथ होती है तो ये 5वीं शादी कर सकता है। या चारों में से किसी एक से भी इसका डिवोर्स होगा तो ये 5वीं शादी कर सकता है। तो ये मैरिज क्या है, शिया में वॉइड है, सुन्नी में क्या है, इर्रेगुलर। ठीक है, देन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, सिंपल सी बात है कि 2 मेल विटनेस की जरूरत थी, 2 मेल विटनेस नहीं है, तो मैरिज जो है वो इर्रेगुलर होगी। अगर शिया में है तो शिया में वैलिड होगी, क्योंकि शिया में विटनेस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, शिया में जो है वो विटनेस की जरूरत ही नहीं है, तो यह शिया पे वैलिड होगी। अगर सुन्नी है, उनमें अगर मैरिज हो रही है, विटनेस नहीं है, तो वो इर्रेगुलर होगी। ठीक है, फिर आता है डिफरेंस ऑफ रिलीजन। डिफरेंस ऑफ रिलीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे सवाल मेरे ख्याल से पिछले बार जो अभी जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, जो अगस्त में जो एग्जाम आपके हुए थे, जो कैंसिल हुए थे, उसमें ये सवाल आया भी था इससे। ठीक है, तो सुन्नी मेल प्लस सुन्नी फीमेल और किताबियां। किताबियां कौन होते हैं, देखिए 3 रिलीजन ऐसा है, ठीक है, जो बुक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जिसका कनेक्शन बुक से है। कौन कौन रिलीजन है, किसी को मालूम है? एनीवन कैन लाइक गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ which religion are related with books? like मुस्लिम में अगर हम बात करें तो इस्लाम जो है वो कुरान से रिलेटेड है, कहते हैं कुरान से आया है। तो व्हाट आर 2 अदर रिलीजन हु आर लाइक कनेक्टेड विद बुक, जिनका बुक से बहुत ज्यादा कनेक्शन है, जो कहते हैं उन बुक की वजह से वो चीज आई, वो दोनों रिलीजन है। So it's a Hindu and a Christian. हिंदू इज नॉट लाइक केम फ्रॉम एनी religion. So then it would be Christian then, sir. Bible Christian. अभी कहीं वॉर चल रही है 2 कंट्री में, मतलब एक तो रशिया और एक यूक्रेन, और एक दूसरी और कंट्री है, इजराइल और फलस्तीन और गाजा वाला, है ना। तो इजराइल में कौन सा रिलीजन है? शायद ज्यूज जो रिलीजन है ना, उनकी एक बुक है तौरेत, है ना, वो उस पे बेस्ड है। क्रिश्चियन जो है किस पे बेस्ड है? बाइबल पे बेस्ड है। कुरान किस पे बेस्ड है? वो आपकी सॉरी मुस्लिम इस्लाम किस पे बेस्ड है? कुरान पे बेस्ड है। तो ये जो 3 रिलीजन है दैट आर कंसिडर्ड एज एन रिलीजन विच इज बेस्ड ऑन होली बुक। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो सुन्नी है हमारा, सुन्नी मेल, वो सुन्नी फीमेल से तो शादी कर ही सकता है, लेकिन जो किताबिया जो हैं, मतलब कि क्रिश्चियन और ज्यूज, इनसे भी अगर शादी करता है तो मैरिज जो है वो वैलिड होगी। ठीक है, क्योंकि जो रिलीजन है, मतलब इनमें जो पैगंबर हैं इनके सारे, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हैं, तो सब इनमें आते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कहने का मतलब। देन सुन्नी मेल अगर आइडोलेटर से करता है या फायर वर्शिपर से करता है, आइडोलेटर्स फायर वर्शिपर कौन होते हैं? जो आग की पूजा करते हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं। तो हम लोग एक हिंदू रिलीजन को यहाँ पे कर सकते हैं, इनसे करता है तो मैरिज इर्रेगुलर होगी। ठीक है, मैरिज इर्रेगुलर होगी। अभी इसको हम लोग आगे थोड़ा और समझेंगे, अभी इतना ध्यान रखिए कि मैरिज इर्रेगुलर होगी। शिया मेल जो है वो सुन्नी और शिया फीमेल से कर सकता है, अगर करता है तो दैट मैरिज इज वैलिड। अगर शिया मेल किताबिया, आइडोलेटर्स या फायर वर्शिपर से करता है तो मैरिज जो है वो वॉइड होगी। ठीक, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे कब मैरिज वॉइड, वो इरेगुलर मैरिज
वैलिड बन सकती है, तो उसमें हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी इतना याद रखिएगा, ये चार्ट याद रखिएगा कि सुन्नी मेल, सुन्नी फीमेल और किताबिया दोनों से कर सकता है, मैरिज वैलिड है। सुन्नी मेल आइडोलेटर्स या फायर वर्शिपर से करता है तो मैरिज इर्रेगुलर होगी। इर्रेगुलर क्यों होगी? क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो लड़की हैं जो आइडोलेटर्स हैं, फायर वर्शिपर्स हैं, वो अगर मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट कर लेते हैं या फिर किताबिया किसी रिलीजन को अडॉप्ट कर लेती है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन बन जाती हैं, ज्यूज बन जाती हैं, तो वहां पे उनके लिए वो मैरिज वैलिड हो जाएगी, है ना, शादी फिर हो सकती है। शिया मेल जो है सुन्नी या शिया फीमेल से कर सकता है मैरिज, और शिया मेल जो है किताबिया से, आइडोलेटर से और फायर वर्शिपर किसी से नहीं मैरिज कर सकता। अगर वो करता है तो वो मैरिज वॉइड होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन अंडरगोइंग इद्दत पीरियड। अब किसी ने सवाल पूछा था कल की क्लास में कि सर इद्दत पीरियड समझाइए, ठीक है। तो इद्दत पीरियड को पहले थोड़ा सा हम समझते हैं, है ना। तन्मय आपका सवाल था, है ना? Yes, sir. It was me. हाँ, तो देखिए इद्दत पीरियड का कंसेप्ट क्या है। इद्दत पीरियड इज द कंसेप्ट व्हिच इज लाइक इमर्ज जस्ट बिकॉज टू कंफर्म द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। कि अगर कोई एक पर्सन है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है, उनका सेपरेशन होता है आइदर बाय डेथ आइदर बाय डिवोर्स, ठीक है। तो उस टाइम अगर फॉर एग्जांपल वाइफ प्रेग्नेंट थी अपने हस्बैंड से, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, तो इसलिए एक पीरियड रखा गया कि जब भी मैरिज डिसॉल्व होगी आइदर बाय मैरिज आइदर बाय डिवोर्स, तो वुमेन हैव टू वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। क्योंकि 3 महीने का टाइम, 4 महीना 10 दिन का टाइम, ऐसा कुछ टाइम होता है, और एक प्रेगनेंसी वाला टाइम होता है कि अगर प्रेग्नेंट थी, पहले से ही पता है कि प्रेग्नेंट, जब तक डिलीवरी है तब तक इद्दत पीरियड होगी। तो ये जो टाइम है वो इसलिए रखा गया है कि जो ऑब्वियस सी बात है 3 महीना या 4 महीना जो 10 दिन का टाइम है, इसमें जो है वो पता चल जाता है कि वुमेन इज प्रेग्नेंट है नहीं। सिम्टम्स वगैरह जो चीजें होती है नॉर्मली, जो क्या बोलते हैं मेडिकल चीजें हैं, वो चीजें से पता चल जाती है। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो पैटर्निटी होगी वो कौन होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आज जो है किसी वुमेन का डिवोर्स हुआ, कल उसने किसी और से शादी कर ली, बट शी वाज प्रेग्नेंट फ्रॉम हर लाइक प्रीवियस हस्बैंड। तो अब यहाँ पे डिस्प्यूट होगा कि वो बच्चा किसका है, पहले वाले हस्बैंड का या दूसरे वाले हस्बैंड का। इसलिए एक टाइम लिमिट रखा गया कि उस टाइम लिमिट के बाद ही वो वुमन किसी थर्ड पर्सन से शादी कर सकती है, ताकि अगर इस बीच में प्रेगनेंसी की कोई बात आएगी तो हम वहां पर आइडेंटिफाई कर पाए कि हु इज द लीगल गार्जियन ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इद्दत पीरियड 3 है, ठीक है। 3 सिचुएशन में 3 इद्दत पीरियड है। पहला ही कहता है कि अगर डिवोर्स हुआ है तो 3 लूनर मंथ। अब ये लूनर मंथ क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज लूनर मंथ? एनी आइडिया? लूनर मंथ इज अ इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर होता है 29 या 30 दिन का। जैसे हम लोग ये ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है ना, 31 का भी होता है, 28 का भी होता है, 30 का भी होता है। इस्लामिक कैलेंडर या तो 29 का होगा या तो 30 का होगा। तो ये पॉइंट है यहाँ पे कि 3 लूनर मंथ का मतलब है कि 3 इस्लामिक कैलेंडर जो है का टाइम उसको पास करना पड़ेगा वुमेन को, ठीक है। अगर मैरिज जो है डिसॉल्व हुई है वो बाय डेथ ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वुमेन को 4 लूनर मंथ और 10 दिन पास करना पड़ेगा, मतलब 4 इस्लामिक कैलेंडर प्लस 10 दिन, ठीक है। और अगर मान लीजिए वुमेन प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आइदर बाय डेथ और आइदर बाय डिवोर्स, तो उसको तब तक वेट करना पड़ेगा दूसरी शादी के लिए जब तक उसके बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती। Until she give birth to the child, she have to wait for the second marriage, and after like giving the birth to the child, she can marry with any other person, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक लेडी है, ये सवाल आता है आपके एग्जाम में इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक दो बार आया भी है ये सवाल। एक लेडी है, उसका हस्बैंड से डिवोर्स हुआ, ठीक है। तो डिवोर्स के केस में कितने दिन उसको इद्दत पीरियड गुजारना है, जल्दी बताइए। 3 लूनर मंथ, 3 मंथ है ना, 3 लूनर मंथ, ठीक है। लेकिन अगर इसने 2 मंथ पास कर लिया और 2 मंथ पास करने के बाद इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो क्या ये 2 महीने 1 महीने के बाद इसका जो है इद्दत पीरियड खत्म हो जाएगा, या क्या इसको अब ये डेथ वाला इद्दत पीरियड गुजारना पड़ेगा? बताइए, क्या 1 लूनर मंथ वाला ही करना पड़ेगा आई थिंक। 3 लूनर मंथ, 3 लूनर मंथ। कोई और? देखिए इसमें कंसेप्ट ये है, थोड़ा टेक्निकल है चीजें, ठीक है।
इसमें टेक्निकलिटी ये है कि जब कोई भी लेडी 3 महीने का अपना इद्दत पीरियड गुजार रही है बिकॉज शी गॉट डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड and within that 3 month her husband dies, then she need to like exercise a fresh period of 4 months 10 days from the date of death of her husband. ठीक है, ये जवाब है इसका सही. ठीक है, आप कहीं भी पढ़े वगैरह तो इस चीज को याद रखिएगा. और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि अगर कोई वुमेन 3 महीने का अपना लूरन इद्दत पीरियड गुजार रही थी बिकॉज उसका डिवोर्स हुआ है उसके हस्बैंड से, उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया, वो 3 महीने का अपना इद्दत पीरियड गुजार रही है. 3 महीना खत्म होने से पहले कभी भी उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उसको फिर से एक फ्रेश इद्दत पीरियड गुजारना पड़ेगा 4 महीना 10 दिन का. ठीक है, ये चीज है. और फिर वही बात है कि अगर वही वुमेन अगर मान लीजिए एट द टाइम ऑफ डिवोर्स या एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड अगर प्रेग्नेंट है तो जब तक डिलीवरी नहीं होगी, चाहे वो डिलीवरी आपकी 9 महीने की हो, 7 महीने की हो, 6 महीने के बाद हो जाए, जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक जो है वो इद्दत पीरियड रहेगा. ठीक है. सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इद्दत पीरियड? इद्दत पीरियड का कंसेप्ट ये है टू नो द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड या टू रिकॉग्नाइज द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड. एंड एक टाइम पीरियड है जब तक वुमेन को वेट करना होता है, उस पीरियड में वुमेन जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती. ठीक है, इसको आप लोग हिंदू मैरिज में जो डिवोर्स का जो कंसेप्ट है हिंदू मैरिज में, इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं. मतलब दोनों में कोई लिंक नहीं है बट ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि हिंदू में जब कभी डिवोर्स होगा सेक्शन 13 के अंदर में या सेक्शन 13B के अंदर में, तो जो पार्टीज हैं दे कैन नॉट मैरी विथ एनी थर्ड पर्सन अंटिल इन जो अपील का टाइम है वो पास हो गया हो और अपील नहीं की गई हो, या अपील की गई थी वो अपील जो है डिसमिस हो गई हो. होता है ना, आपने पढ़ा होगा सेक्शन 16 में ये पॉइंट, है ना, कि एक टाइम पीरियड है जो आपको पास करना पड़ता है. कौन सा टाइम पीरियड? अपील वाला टाइम पीरियड. तो उसी तरीके से इसको रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं कि वो मुस्लिम में क्या है कि अगर किसी का डिवोर्स होता है या किसी की डेथ होती है तो एक इद्दत पीरियड वुमेन को गुजारना पड़ता है. इद्दत पीरियड का पर्पस ये है कि टू रिकॉग्नाइज या टू ये फाइंड आउट करने के लिए कि हु विल बी द एक्चुअल फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, जो कि उस मदर के वोम में है. ठीक है, या हो सकता है इन बिटवीन 3 मंथ और 4 मंथ के अंदर, है ना. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक तन्मया? जी सर. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी की. प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी में 2 चीजें आती हैं. ठीक है, एक आता है पॉलीएंड्री. तो चाहे हम हिंदू लॉ की बात करें, क्रिश्चियन की बात करें, मुस्लिम लॉ की बात करें, कभी भी एक वुमेन को एक से ज्यादा हस्बैंड रखने की परमिशन नहीं. ठीक है, हिंदू लॉ में भी पहले थी, मतलब रिकॉग्नाइज था, हिंदू लॉ में शादी होती थी, बट ये 1955 के बाद आपका खत्म हो गया जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, है ना. हिंदू मैरिज एक्ट आया उसके बाद से, क्योंकि आप अगर सबसे बड़े हमारे लॉयर की बात करेंगे राम जेठमलानी, तो उनकी भी 2 बीवियां थी, और भी बहुत सारे लोग हैं एग्जाम्पल के तौर पे जिनकी 2 बीवियां थी, बट दे ऑल आर बिफोर 1955, बिफोर कमिंग या कह लें बिफोर इन्फोर्समेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, है ना. हिंदू मैरिज एक्ट में जो लिमिटेशन लगी है या हिंदू में जो लिमिटेशन लगी दैट इज फ्रॉम आफ्टर 1955. मुस्लिम में भी सेम चीज है कि जो है आपका एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसमें मेल को पॉइंट है कि 4 शादी करने का परमिशन है, बट वही चीज है कि फिर अगर आप 4 शादी करते हैं तो यहाँ पे 2 चीजें भी पॉइंट समझनी होती है जो लोग नहीं समझते, जिनको मतलब जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ी है या चीजों को कंसेप्ट नहीं, उनको ये कहा गया यू हैव टू मेक इक्वालिटी बिटवीन ऑल. अगर आप 4 शादी करते हैं या 4 नहीं करते, मान लीजिए 2 ही करते हैं, तो आपको दोनों में इक्वालिटी करनी होगी. अगर आपके लिए एक साड़ी आप लेकर आ रहे तो दूसरे को भी वही साड़ी देनी होगी. अगर आपको 2 कमरे का एक को घर दे तो दूसरे को भी 2 कमरे का एक घर देंगे. और उसी का आगे जो वर्सेस पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि एक मैन कैन नॉट मेक इक्वालिटी बिटवीन बोथ. ठीक है, फीलिंग के मामले में, किसी चीज के मामले में कम बेसी वो कर सकता है. तो इनडायरेक्टली आपको कहा गया कि आप 4 शादी ना करें, क्योंकि आप इक्वालिटी नहीं करेंगे. अगर आप इक्वालिटी नहीं करेंगे दैट मीन्स यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ साइन, है ना, आप गुनाह कर रहे हैं, है ना. आप अगर 2 शादी करके रखी है आपने, लेकिन अगर आपने इक्वालिटी नहीं कर पा रहे तो आपको उसका फिर उसकी पनिशमेंट मिलेगी आफ्टर गोइंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड. तो पॉइंट यही है कि है अलाउ बट विद सर्टेन लाइक कंडीशन, और वो जो कंडीशन है वो आप फुलफिल नहीं कर सकते. कुरान ही में ये बात कही गई कि आप इक्वालिटी नहीं कर सकते. तो इसका मतलब ये कि आप
शादी भी जो है वो अगर करते हैं तो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैरिज जो है 4 हस्बैंड मतलब मेल को अलाउ है, बट वुमेन को, चाहे आप किसी भी लॉ की बात करें, चाहे हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, चाहे वो क्रिश्चियन की बात करें, चाहे उसको फीमेल को कभी भी एक से ज्यादा हस्बैंड रखने की परमिशन नहीं है। वाई दिस इज लाइक ऐसी कंडीशन है, मतलब पहले की अगर हम बात करें या अभी की हम बात करें तो क्यों है? कोई बता सकता है इसका कोई जवाब? क्यों है ये चीजें? क्यों है ये कंडीशन? कोई बता सकता है? मतलब हस्बैंड को अलाउ था 2 शादी करना हर रिलीजन में पहले, बट वुमेन को कभी नहीं रहा, स्टार्टिंग से भी और अभी भी। एनी आइडिया? Maybe for the reason of gender inequality. फॉर द Gender inequality. नहीं, जेंडर का कोई मसला नहीं। Okay. देखिए, एक पॉइंट है हमारे पास कि वुमेन के पास पहले राइट नहीं थे, ये सारी चीजें है ना, बट अगर ऐसी बात थी तो अभी तो हमने बहुत लॉ बनाया वुमेन के लिए, अब तो हम कर सकते थे। पॉइंट ये है दैट इज हाउ इट विल बी डिसाइडेड दैट चाइल्ड जो है वो किसका होगा। सबसे ज्यादा बड़ा इशू ये रह जाएगा कि अगर 2 हस्बैंड होंगे एक वुमेन के, तो अगर वो बर्थ देगी किसी चाइल्ड को, तो बच्चे का जो रियल फादर है वो कौन होगा, ये ज्यादा बहुत बड़ा इशू रहेगा। ठीक है, अगर एक हस्बैंड एक पर्सन है, उसकी 4 वाइफ हैं, तो उस केस में चारों वाइफ्स अगर लाइक चाइल्ड होते हैं तो सबको पता है कि जो हस्बैंड है जो वही फादर है इसका। लेकिन अगर 2 हस्बैंड हैं और एक वुमन है तो उस केस में चाइल्ड की पैटर्निटी वाला जो है वो इशू होगा। ठीक है, तो इसलिए हर रिलीजन में, ठीक है, हर रिलीजन में कभी भी वुमेन को ये अलाउ नहीं किया गया कि वो एक से ज्यादा हस्बैंड रख सके। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई ऐसा सवाल अगर आप लोगों से पूछे तो इसका ये पॉइंट है। देन दूसरा पॉइंट है मुस्लिम वुमन मैरिंग ए नॉन मुस्लिम, ठीक है, किताबिया और फायर वर्शिपर। ठीक है, मुस्लिम वुमेन कभी भी एक नॉन मुस्लिम से, किताबिया से शादी नहीं कर सकते। ठीक है, देन उसके बाद डायरेक्टर इन कैपेसिटी। डायरेक्टर इन कैपेसिटी में कहते हैं कि मैरिंग वुमन हु इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। ठीक है, फिर रीमैरिंग विथ हर ऑन वाइफ आफ्टर डाइवोर्स विदाउट फुलफिलिंग कंडीशन ऑफ हलाला। हलाला कंसेप्ट क्या होता था मैं बता दूं कि अगर एक पर्सन है, उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है और वो चाहता है कि नहीं हम अपनी वाइफ से दोबारा शादी कर ले, तो वो डायरेक्टली उससे शादी नहीं कर सकता। ही लाइक हैव टू वेट। कैसा वेट कि भाई पहले उसकी जो वाइफ है वो किसी और से शादी करेगी, उसके बाद मैरिज कंज्यूमेट होगी, कंज्यूमेशन के बाद उसका और उस पर्सन का और उसकी वाइफ का जो है उन लोगों का डिवोर्स होगा, और डिवोर्स के बाद अगेन शी कैन रीमैरी विद हर प्रीवियस हस्बैंड, है ना, अपने पहले वाले हस्बैंड से वो शादी कर सकती थी। ये पूरा हलाला का कंसेप्ट था। ठीक है, उसके बाद मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, है ना, हज यात्रा वगैरह पे कुछ जा रहे तो उस टाइम में शादी नहीं कर सकते, और मैरिज विद सिक मैन आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, ये डायरेक्ट इन कैपेसिटी, इन सारी सिचुएशन में आपकी मैरिज जो है वो इरेगुलर होती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका और ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये दो, एक सेकेंड, कहाँ गया हमारा वॉइड वाला? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, वॉइड वाला, ये 2 पॉइंट जो है हमारे। ठीक है, इन 2 पॉइंट में मैरिज जो है, चाहे वो सुन्नी हो चाहे शिया हो, ठीक है, दोनों में मैरिज क्या होंगी हमारी, वो वॉइड होंगी। बाकी सब में शिया होगा तो मैरिज जो है वो वॉइड होंगी, सुन्नी होगा तो मैरिज जो है वो इरेगुलर होंगी। ठीक है, और वॉइड। ठीक है, लेकिन बस ये पॉइंट, अरे एक सेकेंड, ठीक है, 1 पॉइंट मतलब प्रोहिबिटिव इन कैपेसिटी से पहला पॉइंट, और जो डायरेक्ट इन कैपेसिटी है उससे दूसरा पॉइंट। इन दोनों में मैरिज चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, मैरिज जो है वो वॉइड होगी।
ठीक है, वो मैंने अभी आगे लिखा वैलिड वॉइड और बाकी सारी चीजों में, बट इसको इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट सवाल आपके पूछ लिया जाता है कि पॉलीएंड्री अगर होता है, एक वुमेन जो है वो एक से ज्यादा हस्बैंड रखती है, तो मैरिज क्या होगी, जो दूसरी मैरिज है वो क्या होगी, तो मैरिज वॉइड होगी, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया। ठीक है, रीमैरिज करते हैं एक पर्सन अपनी वाइफ के साथ बिकॉज विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ हलाला, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मैरिज, मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड बोथ इन सुन्नी लॉ एंड शिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जी सर। चलिए, तो अब आते हैं काइंड्स ऑफ मैरिज पे। ठीक है, काइंड्स ऑफ मैरिज में देखिए हमने दोनों सेक्ट में जो मैरिज है उनको दो काइंड में बांटा है। ठीक है, एक है आपका सेक्ट हमारा सुन्नी वाला और एक है सेक्ट हमारा शिया वाला। पहला है सुन्नी में कि वैलिड वॉइड इर्रेगुलर। अब ये जो इर्रेगुलर है ना, ये शिया में नहीं है। ठीक है, इसके प्लेस पे है टेम्पोररी, बट क्या ये दोनों का कंसेप्ट सेम है? तो नहीं। ठीक है, दोनों का कंसेप्ट अलग है, बस बाकी इसमें एक नया है मुता मैरिज, दैट इज, है ना। और मुता मैरिज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा याद रखिएगा इतना आशारिया। ठीक है, शिया में जो इतना आशारिया है उसी में है। ठीक है, और किसी में नहीं। तो अब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सारे पॉइंट्स को, बस इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है वैलिड का, वॉइड का और इरेगुलर का कंसेप्ट, और क्या है वैलिड, वॉइड और मुता मैरिज का कंसेप्ट शिया का। तो वैलिड का सिंपल सा फॉर्म है कि जो तीन कंडीशन हैं, अगर वो तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, देन द मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। व्हाट आर दीज थ्री कंडीशन? दैट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दूसरा कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, एंड तीसरा नो लीगल डिसेबिलिटी। That means there must be no absolute, prohibitive, relative और indirect incapacity should be there. किसी तरीके की इनकैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। पार्टीज कैपेबल होने चाहिए, मतलब कि एज ऑफ पुबर्टी अटेंड कर चुके हों, साउंड माइंड हो और कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट होने चाहिए। ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक ही टाइम पे होना चाहिए, फ्री कंसेंट से होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मेल विटनेस होना चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ सुन्नी लॉ में है। ठीक है, अगर दो मेल विटनेस नहीं है तो एक मेल और दो फीमेल से हो सकता है। ठीक है, बट ये वाला आपका ये जो रिक्वायरमेंट है ये शिया में नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुन्नी में। तो ये अगर सारी चीजें एग्जिस्ट है एक मैरिज में, ठीक है, एग्जिस्ट करती है, तो दैट मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड मैरिज, सही मैरिज। ठीक है, सही मैरिज उसको कहा जाएगा। On what will be the effect of a valid marriage? तो इफेक्ट में सिंपल सी बात है, बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं पार्टीज के ऊपर, जैसे कि सबसे पहला कि कोहेबिटेशन बिटवीन हस्बैंड, कोहेबिटेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ विल बी कंसिडर एज लॉफुल। ठीक है, चाइल्ड जो होंगे, बॉर्न होंगे आउट ऑफ दैट वैलिड मैरिज विल बी कंसिडर एज लेजिटिमेट एंड दे कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, लाइक माता से भी कर सकता है, अपने पिता से भी कर सकता है। म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस आएगा, हस्बैंड मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी से वाइफ को राइट मिलेगा, वाइफ मरती है तो उसकी प्रॉपर्टी से हस्बैंड को राइट मिलेगा, है ना, प्रॉपर्टी मिलेगी कहने का मतलब है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आएगा, अब वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड जो है वाइफ की सिस्टर से शादी नहीं कर सकता, हस्बैंड जो है वाइफ की मदर से शादी नहीं कर सकता। सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन विथ रिगार्ड टू द मैरिज विल बी अपॉन हस्बैंड। वाइफ के ऊपर तो वैसे भी नहीं, वो तो किसी से भी शादी नहीं कर सकती, है ना, हस्बैंड के किसी भी रिलेटिव से तो वैसे भी दूसरी शादी नहीं कर सकती, बट हस्बैंड के ऊपर एक प्रोहिबिटेड रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। वाइफ के पास राइट ऑफ मेंटेनेंस आ जाएगा हस्बैंड से, और वाइफ के पास राइट होगा डावर का भी। ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट, हाँ, डावर का राइट टू क्लेम डावर फुल्ली स्टैब्लिश जस्ट आफ्टर एक सेकेंड। ठीक है, जस्ट आफ्टर जो है मैरिज डावर का राइट आ जाएगा, और जब भी मैरिज डिसॉल्व होगी तो विडो जो होंगी या जो वाइफ होंगी, मतलब अगर मान लीजिए डेथ होती है तो विडो, अगर डिवोर्स होता है तो वाइफ, उनको इद्दत पीरियड में जाना होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, तो ये इफेक्ट है एक वैलिड मैरिज का। तो हो सकता है आपसे कभी कभी एग्जाम में सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इफेक्ट हो सकते हैं एक वैलिड मैरिज के। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना। ठीक है।
फिर से मैं रिपीट कर दूं एक बार, कोहेबिटेशन लॉफुल हो जाएगा, चाइल्ड जो पैदा होगा वो लेजिटिमेट होगा और इनहेरिटेंस का राइट रखेगा दोनों की प्रॉपर्टी से, म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस होगा, मतलब हस्बैंड वाइफ के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, वाइफ जो है हस्बैंड के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आएगा फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, ठीक है। वाइफ का राइट होगा डावर क्लेम करने का, वाइफ का राइट होगा मेंटेनेंस क्लेम करने का, ठीक है। जैसे ही शादी हुई उसके बाद से तुरंत ये दोनों राइट वाइफ को आ जाएगा। मैरिज डिसॉल्व होती है आइदर बाय डेथ और बाय डिवोर्स, तो वाइफ को इद्दत पीरियड में जाना होगा, इद्दत पीरियड उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इफेक्ट है एक वैलिड मैरिज का। कभी कभी जो आपके सवाल हैं वो इसी तरीके से पूछ ले जाएंगे, बहुत सारे इसमें से जो है आपके इफेक्ट दिए जाएंगे, कुछ एक गलत इफेक्ट होगा और बोला जाएगा कौन सा जो है एक वैलिड इफेक्ट नहीं है एक वैलिड मैरिज का, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सवाल बन जाते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग इरेगुलर मैरिज। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इरेगुलर मैरिज इज एप्लीकेबल इन सुन्नी लॉ ओनली। इरेगुलर मैरिज और वॉइडेबल में मैंने बताया था आपको डिफरेंस, कि इरेगुलर का मतलब होता है देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ इम्पिडिमेंट्स या सर्टेन काइंड ऑफ बैरियर, बिकॉज ऑफ दैट ए मैरिज कैन नॉट बी परफॉर्म, ठीक है। और इफ द मैरिज परफॉर्म विदाउट लाइक उस हर्डल को हटाने के बगैर आपने वो जो है वो शादी कर ली है तो मैरिज इरेगुलर होगी, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि वॉइडेबल में क्या होता है, वॉइडेबल में देयर मस्ट बी अ डिफॉल्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द पार्टी, है ना। एक पार्टी की तरफ से डिफॉल्ट होता है जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को ये राइट मिलता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो वैलिड कर सके या तो इनवैलिड कर सके। डिफॉल्ट क्या होता है, कोअर्जन था सामने वाली पार्टी से तब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस था इसलिए आपने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक था, मिसरिप्रेजेंटेशन था, इस वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, दूसरी पार्टी जिसके ऊपर कोअर्जन किया गया था, जिसको थ्रेड दिया गया था, जिसको मिसरिप्रेजेंट किया गया था, उसके पास से राइट होता है कि मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको या तो रिसाइन कर दे या तो रेक्टिफाई कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं है, यहाँ पे देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन द पार्टीज कैन नॉट मैरी, इफ दे मैरी देन इन दैट केस शादी क्या होगी आपकी इरेगुलर होगी। तो ये जो कैटेगरी है ये सारी जो तीन हमने पढ़ी थी, प्रोहिबिटिव, रिलेटिव और डायरेक्टिव, इन्हीं तीनों में आती, ठीक है। प्रोहिबिटिव में जितनी कंडीशन है लगभग ऑलमोस्ट सारी कंडीशन जो है इसमें आपकी मैरिज जो है इरेगुलर होगी सुन्नी लॉ में। रिलेटिव में एक कंडीशन में है और डायरेक्टिव में जो बाकी 3-4 कंडीशन थी उसमें। इसके अलावा भी और 2-3 कंडीशन है जिसमें मैरिज जो है वो इरेगुलर होगी। क्या क्या है, जैसे कि पोलीगैमी और मैरिंग विद फिफ्थ वाइफ, ठीक है, मैरिज इरेगुलर होगी। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, मैरिज जो है वो आपकी इनवैलिड होगी, सॉरी इरेगुलर होगी। डिफरेंस ऑफ रिलीजन, मैरिज इरेगुलर होगी। अनलॉफुल कंजंक्शन, मैरिज इरेगुलर होगी। मैरिज बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, है ना, मान लीजिए कि मैरिज का परमिशन किसको दिया गया है, गार्जियन को दिया गया है और पेरेंट्स को दिया गया, ठीक है। अगर ये जो है सॉरी पेरेंट्स कह रहा हूँ यहाँ पे, फादर को, फादर और गार्जियन को दिया गया, इनके अलावा किसी और ने शादी करा दी, मैरिज जो है वो इरेगुलर होगी। वुमेन अगर इद्दत पीरियड में गुजर रही है और उसने शादी कर ली, ठीक है, वही 3 लूनर मंथ के अंदर में डिवोर्स के केस में, या 4 लूनर मंथ 10 दिन के अंदर में डेथ के केस में, या जो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड तक के में इससे पहले कर ली, देन उस केस में जो मैरिज होगी दैट विल बी इरेगुलर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा और भी हैं, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट ये है कि इन सारे सिचुएशन में अगर शादी होती है तो मैरिज इरेगुलर होगी। तो अगर कोई इरेगुलर मैरिज है तो इसको वैलिडेट किया जा सकता है। कैसे वैलिडेट होगा, आइए उसको समझते हैं। अब देखिए ये है सिचुएशन, ठीक है, कि एक साइड में इरेगुलर मैरिज है और वो इरेगुलर मैरिज कैसे, मतलब फासिद मैरिज है, और वो मैरिज कैसे एक वैलिड सही मैरिज या रेगुलराइज्ड होगी उसको हम लोग देखते हैं। अगर एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस है, ठीक है, 2 मेल विटनेस की जरूरत थी, 2 मेल विटनेस नहीं है, आपने बिन एक ही मेल विटनेस के अंदर के सामने मैरिज कर ली, या एक भी मेल विटनेस नहीं था आपने मैरिज कर ली, तो मैरिज कैसे वैलिडेट होगी, बाय कंज्यूमेशन, ठीक है। दूसरा कि अगर मैरिज विद अ वुमन है हु इज प्रेग्नेंट बाय हर फॉर्मल हस्बैंड, तो अब मैरिज आपको दोबारा से उससे करनी होगी, कब, जब वो बच्चे को बच्चे की डिलीवरी हो जाए उसके बाद, है ना, आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द पर्सन कैन मैरी विद दैट वुमन एंड दैट मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड, ठीक है। मैरिज विदाउट फ्री कंसेंट, है ना, सामने वाली कंसेंट नहीं थी, आपने उससे शादी करी, है ना, जबरदस्ती उसको डरा धमका के, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस से,
किसी तरीके से शादी करी, उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, तो मैरिज क्या होगी? इरेगुलर होगी। वैलिडेट कैसे किया जा सकता है उसको? कि अगर पार्टी मेजर है तो वो खुद अपनी कंसेंट देगा, अगर पार्टी माइनर है तो उस केस में उसके गार्जियन देंगे कंसेंट, ठीक है। और अगर माइनॉरिटी में मान लीजिए उसके गार्जियन ने से थ्रेट वरेट दे के कंसेंट ले ली गई थी, तो जब वो मेजर होगा तब वो अपनी कंसेंट वैलिड दे सकता है, ठीक है। तो मैरिज क्या होगी? वैलिड हो जाएगी। देन व्हेन मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की हालत में थे, आपने शादी कर ली, सुबह उठे, देखें बगल में वाइफ, मतलब दोनों ही हस्बैंड वाइफ मान लीजिए, दोनों नशा की हालत में थे, दोनों ने रात में शादी कर ली, सुबह उठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक दूसरे के बगल में जो है पड़े हुए हैं दोनों, है ना, कि भाई लड़के के बगल में लड़की है और लड़की के बगल में लड़का है, बोले तुम कौन? बोलता है तुम कौन? तो बाहर से पब्लिक आती है, उनके परिवार वाले कहते हैं कि तुम लोगों ने तो रात में शादी कर ली थी, ठीक है। तो अब वहां पे क्या है कि जैसे ही आप कॉन्शियस हुए, आपका नशा उतर गया, उसके बाद आपने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो रात में शादी कर ली नशे में, कोई बात नहीं, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँ, चलो ठीक है, हमारी मैरिज जो है वो हम रेक्टिफाई करते हैं। तो जैसे ही वो रेक्टिफाई करेंगे, होश में आने के बाद दैट मैरिज विल बिकम वैलिड, ठीक है। उसके बाद और भी पॉइंट है इसमें, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे सवाल आते हैं, है ना, कब एक इरेगुलर मैरिज रेगुलर हो सकती है, इस पे आपके सवाल आते हैं। तो यहाँ पे आता है मैरिज विथ अ पर्सन ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन। तो वही मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था कि अगर किसी की शादी क्रिश्चियन से, सॉरी, किसी की शादी आइडोलेटर से या फायर वर्शिपर से होती है, सुन्नी मेल की, तो जो वुमेन है वो इस्लाम में आ जाए, क्रिश्चियन में आ जाए या ज्यूज में आ जाए, तो वो मैरिज वैलिड हो सकती है। और हस्बैंड को लेकिन इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मतलब एक वुमेन जो है वो किसी भी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। उस जो भी रिलीजन का वो पर्सन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ज्यूज हो, हिंदू हो, उसको पहले इस्लाम ही कबूल करना पड़ेगा। वो अगर क्रिश्चियन बन जाता है या वो अगर ज्यूज बन जाता है तो मैरिज वैलिड नहीं हो सकती। उसको इस्लामिक रिलीजन कबूल करना पड़ेगा, उसको मुस्लिम ही बनना पड़ेगा, ठीक है। तो मेल के लिए है क्या कंडीशन कि उसको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना है। फीमेल इन तीनों में से किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है, और कन्वर्जन के बाद जो है शादी होगी तो मैरिज जो है रेगुलराइज हो जाएगी, ठीक है। देन मैरिज बाई पर्सन हु हैज ऑलरेडी 4 वाइफ। तो क्या है सिचुएशन इसका कि किसी एक से डिवोर्स हो जाए या किसी एक की डेथ हो जाए तो 5वीं शादी कर सकता है। देन मैरिज विथ अ वुमन अंडरगोइंग इद्दत, है ना, इद्दत में जा रही है, तो जब इद्दत पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तब हो सकता है। मैरिज वेयर इट इज प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ अनलॉफुल कंजंक्शन, है ना, कि भाई 2 सिस्टर हैं, उनसे आप शादी नहीं कर सकते एट वन टाइम। तो जैसे एक सिस्टर से आपने शादी करी, अब कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो दूसरी बहन है आप उससे शादी कर सकते हैं, ठीक है। या माँ बेटियां हैं, उनसे शादी, बेटी से शादी करी, बेटी की कुछ टाइम में डेथ हो गई, तो माँ से शादी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन आपका एक प्रोहिबिशन लगा रहा था आप उस दूसरे पर्सन से शादी करने में, वो रिलेशन ही आपका खत्म हो गया, ठीक है। बाय द टर्मिनेशन ऑफ मैरिज विच क्रिएट द प्रोहिबिशन, तो मैरिज ही टर्मिनेट हो गई आइदर बाय डेथ और डिवोर्स। तो उस सिचुएशन में आप फिर जो भी दूसरा पर्सन है, चाहे वो उसकी सिस्टर हो, चाहे उसकी मदर हो, चाहे उसकी आंट हो, चाहे उसकी नीस हो, जो भी हो, है ना, उसकी डॉटर ही क्यों ना हो, उससे आप शादी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? पहले बताइए, ठीक है, यहां तक? हेलो, ठीक है। अब वही बात आती है कि इफेक्ट क्या होगा। तो इफेक्ट में यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड है ये। पहला कहता है कि अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई है, कंज्यूमेट नहीं हुई है, ठीक है, तो जैसे वॉइड मैरिज होती है वैसे इफेक्ट होगा, मतलब कोई राइट नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जस्ट अ सेकंड, ठीक है, मैरिज अगर कंज्यूमेट नहीं हुई है ना, तो जैसे वॉइड मैरिज का इफेक्ट होता है वैसे ही होगा। मतलब कि दे विल नॉट कंसीडर एज हस्बैंड और वाइफ, देयर विल बी नो राइट बिटवीन द पार्टीज, वुमेन कैन नॉट क्लेम लाइक मेंटेनेंस, वुमेन कैन नॉट क्लेम डावर, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैरिज एक इरेगुलर मैरिज कंज्यूमेट हो जाती है तो वहां पे वाइफ को मैरिज डिसॉल्व करने के बाद इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा, डावर के लिए इंटाइटल हो जाएगी, और चाइल्ड जो है कंसिडर एज लेजिटिमेट एंड इंटाइटल टू इनहेरिटेंस, एंड द पार्टी मस्ट बी सेपरेटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ।
इस सिचुएशन में कोर्ट की जरूरत नहीं, पार्टी अपने आप भी सेपरेट हो सकते हैं। बट इस सिचुएशन में अगर मैरिज कंज्यूमेट हो गई है तो पार्टी को कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट से जाके वो एक डिक्री लेकर आएंगे। क्या? डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, ये सिचुएशन। देन वही नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़े। वॉइड मैरिज क्या होती है? तो वॉइड मैरिज 3 सिचुएशन में हो सकती है, बस इतना ही याद रखिएगा। इसमें 3 ही ऐसे सिचुएशन है मुस्लिम लॉ में जिसमें एक मैरिज जो है वो वॉइड हो सकती है। व्हाट आर दीज 3 सिचुएशन? द फर्स्ट वन इज मैरिज विथ अ वुमन प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ कंसेंगुनिटी, एफिनिटी, फोस्टरेज। मतलब कि जो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी वाली बात है। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में 3 रिलेशन है, बाय ब्लड, बाय मैरिज और बाय फोस्टरेज। तो इन 3 रिलेशन में अगर कोई पर्सन आपसे आता है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। अगर उससे आपने शादी की तो मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड। सेकेंड इज मैरिज विथ अ वुमन हु इज वाइफ ऑफ अनदर। ठीक है, मतलब वही कि एक औरत जो है वो एक से ज्यादा हस्बैंड नहीं रख सकती एक टाइम पे, है ना, या 2 पर्सन से शादी नहीं कर सकती। और तीसरा रीमैरिज विथ अ डाइवोर्स्ड वाइफ व्हेन द लीगल बार एग्जिस्ट, दैट इज हलाला, है ना, कि आपने अपनी वाइफ को तलाक दिया फिर उससे बिना हलाला वाला प्रोसीजर फॉलो किए शादी कर ली। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में मैरिज जो है वो वॉइड होगी। और अगर एक वॉइड मैरिज होती है तो वहां पे पार्टी के बीच में कोई राइट नहीं होगा। ठीक है, वन कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर बट इफ द मैरिज इज कंज्यूमेटेड वाइफ इज एंटाइटल्ड टू डावर। मतलब रिलेशन नहीं है हस्बैंड वाइफ का, है ना, प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस नहीं आएगा, लेकिन मैरिज कंज्यूमेट हो गई है इसलिए डावर इसको मिलेगा। ठीक है, चाइल्ड हमेशा इलिजिटिमेट ही माना जाएगा। ठीक है, कंज्यूमेशन के बाद ऑब्वियसली अगर चाइल्ड वगैरह होता है तो जो चाइल्ड है वो इलिजिटिमेट माना जाएगा। देन पार्टीज कैन सेपरेट विदाउट डाइवोर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज। कोई जरूरत नहीं कोर्ट में जाने की, पार्टी अपने आप से अलग हो सकते हैं और किसी और से शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है मुता मैरिज का। मुता मैरिज सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिया के इतना सारिया में होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक डिफरेंट है बेसिकली, कहने का मतलब जो इसके एसेंशियल है ना और जो इसके पॉइंट है वो रेगुलर मैरिज से अलग है। पहली बात तो ये शिया में इतना सारिया में अलाउ है। दूसरी बात कि इस मुता मैरिज का कोई बार नहीं है। बार कहने का मतलब है कि जैसे कि मेल पे 4 शादी का रूल है ना कि वो 4 शादी कर सकता है। एक मेल शिया जो है जो इतना शारिया स्कूल से बिलोंग करता है वो कितनी भी मुता मैरिज कर सकता है, 10, 15, 20, 50 कितनी भी। ठीक है, सो देयर इज नो लिमिट विथ रिगार्ड टू दी वाइफ इन मुता मैरिज, पहली बात। दूसरा, देयर इज नो लिमिट विथ रिगार्ड टू दी रिलीजन ऑफ अ वाइफ, है ना, कि मुस्लिम भी हो सकती है, क्रिश्चियन भी हो सकती है, ज्यूज भी हो सकती है, फायर वर्शिपर वुमेन भी हो सकती है। किसी भी रिलीजन की वुमेन से एक शिया मेल जो कि इतना आशारिया स्कूल से बिलोंग करता है वो मुता मैरिज कर सकता है। और मुता मैरिज क्या होती है? इज अ टेम्पोररी मैरिज फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम ऑन ए स्पेसिफाइड डावर, कि जहां पे डावर अमाउंट फिक्स हो, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया फिक्स है। और कितना टाइम फिक्स है कि 2 साल के लिए शादी होगी, 2 साल के बाद हम लोग ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो फिक्स पीरियड के लिए होती है, स्पेसिफाइड डावर होता है, इसमें लिमिट नहीं होता है, कितनी भी मुता मैरिज इंसान कर सकता है, मतलब एक मेल कर सकता है। पार्टी मस्ट अटेन द एज ऑफ पुबर्टी होनी चाहिए, मतलब कि मुता मैरिज कोई आपका गार्जियन नहीं बना कर सकता। जैसे होता है ना नॉर्मल मैरिज गार्जियन करवा सकते हैं, मुता मैरिज गार्जियन नहीं करवा सकता। मुता मैरिज पार्टी ही कर सकते हैं और पार्टी क्या होंगी? मेजर होनी चाहिए। अदर कंडीशन जो वैलिड मैरिज की रिक्वायरमेंट है वो जरूरी है ना, ऑफन एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में होने चाहिए, एट वन टाइम में क्या कहते हैं उसमें ऑफन एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अदर बार हैं, लीगल जो डिसेबिलिटीज हैं, है ना, प्रोहिबिटिव, एब्सोल्यूट, ये सारी जो चीजें थी, डायरेक्टिव, ये सारी चीजें मतलब फुलफिल होनी चाहिए जो अदर कंडीशन है वैलिड मैरिज की। देन यहाँ पे केस है शोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बेगम। सिंपल सा ये केस है, इसमें एक सवाल है इस केस में कि अगर कोई इंसान, ठीक है, अगर कोई इंसान जो है एक मैरिज करता है, मुता मैरिज, उसमें डेट फिक्स नहीं करता है कि वो जो मैरिज है वो कितने टाइम के लिए। ठीक है, एक लड़का है जो शिया के इतना सारिया से बिलोंग करता है और एक लड़की है जो मान लीजिए सुन्नी फीमेल है। वो दोनों शादी करते हैं और शादी करते समय उन्होंने कहा कि हम मुता मैरिज तो करेंगे, बट उन्होंने डेट फिक्स नहीं की कि कितने टाइम के लिए उनकी मुता मैरिज है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो इस केस में क्या होगा? दैट मैरिज विल बी कंसिडर एज मुता मैरिज और दैट विल बी कंसिडर एज रेगुलर मैरिज। ठीक है, निकाह जो होता है। तो इसमें कहा गया कि नो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन इन मुता मैरिज। आप 1 दिन के लिए भी मुता मैरिज कर सकते हैं, बट
अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो वो एक परमानेंट मैरिज कंसिडर की जाएगी। ठीक है, मिनिमम टाइम का हमने कोई रूल नहीं रखा है, आप एक दिन के लिए मुता मैरिज कर सकते हैं, बट अगर आपने टाइम नहीं फिक्स किया कि एक दिन के लिए थी, एक महीने के लिए थी, एक साल के लिए थी, तो उस सिचुएशन में वो मुता मैरिज जो है वो मुता मैरिज नहीं रहेगी, वो एक परमानेंट मैरिज के लिए कंसिडर की, परमानेंट मैरिज की तरह कंसिडर होगी। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट which was like this is the decision which was held in शोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बेगम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद इफेक्ट क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है कोहेबिटेशन लीगल हो जाएगा, चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट होंगे, राइट ऑफ इनहेरिटेंस होगा। पार्टी के बीच में कोई राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं होगा, क्योंकि भाई ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस एक जो नॉर्मल मैरिज होती है, जो जनरल मैरिज होती है, उनमें आता है, इसमें नहीं होगा, क्योंकि कुछ टाइम के लिए आप कर रहे हैं, कुछ टाइम करने की वजह से जब पार्टी सेपरेट हो गई तो कोई आपका इनहेरिटेंस का राइट नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हस्बैंड वाइफ आप लोग हैं और जो है डिवोर्स हो जाता है, तो डिवोर्स के बाद राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं होता। अगर मैरिज के एग्जिस्टेंस में हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो आपको राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिलता है ना। कभी भी कोर्ट में भी अगर आप लोग देखेंगे किसी हस्बैंड एंड वाइफ का डिवोर्स हो गया और डिवोर्स के 2 साल बाद हस्बैंड की डेथ हो गई या डिवोर्स के 2 साल बाद वाइफ की डेथ हो गई, तो उनको फिर इनहेरिटेंस का राइट नहीं मिलता है कि भाई मैं 2 साल पहले इनकी वाइफ थी या मैं 2 साल पहले इनका हस्बैंड था। ठीक है, तो इसलिए एक टाइम पीरियड के लिए मैरिज होती है, इसलिए इसमें भी इनहेरिटेंस का कोई राइट नहीं रखा गया। मैरिज कंज्यूमेट होती है तो फुल डावर, अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं होती तब भी वाइफ को हाफ डावर मिलेगा। मान लीजिए 3 महीने के लिए शादी हुई थी, लेकिन 3 महीने के बीच में इन लोगों के बीच में कंज्यूमेशन नहीं हुआ, तो भी हाफ डावर जो लेडी है, जो वुमेन है, उसको मिलेगा। ठीक है, और आपका इसमें क्या कहते हैं उसमें अगर कंज्यूमेट हुई है तो फुल डावर मिलेगा। डिवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब टाइम खत्म होगा तो ऑटोमेटिक मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टी चाहे तो हिबाए मुद्दत देके, हिबाए मुद्दत का मतलब है कि अगर वाइफ चाहती है कि टाइम से पहले हम चले जाएं, छोड़ दें इसको हस्बैंड को, हस्बैंड सही नहीं है तो उसको अपना डावर अमाउंट कम करना पड़ेगा, और हस्बैंड चाहता है कि वाइफ को टाइम से पहले छोड़ दें तो उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हस्बैंड को वाइफ को देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सेपरेट हो सकते हैं, और म्यूचुअल कंसेंट तो सेपरेट हो ही सकते हैं टाइम से पहले। ठीक है, बट डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं कि तलाक वाला जो था हसन एहसन ये सब जो फॉर्मेट है वो सब हम लोग इसमें नहीं है कोई कंसेप्ट। ठीक है, तलाक तफवीज ये सारी चीजें, इस सबका कोई कंसेप्ट नहीं। मेंटेनेंस का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन जो कोर्ट है उन्होंने कहा है कि मुता मैरिज में भी वाइफ सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। वाइफ को इद्दत पीरियड में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर कोहेबिटेशन नहीं हुआ है ना, कोई फिजिकल रिलेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं हुआ तो इद्दत पीरियड भी जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो दिस इज द लीगल इफेक्ट ऑफ अ मुता मैरिज। You have to remember all these because sometime the question like आता है यहाँ से, है ना। सबसे important question ये वाले पॉइंट से आता है, ये जो पॉइंट है ना कि अगर कंज्यूमेट हुई है तो कितनी मिलेगी और कंज्यूमेट नहीं हुई है तो कितनी मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा मुता मैरिज में अगर मैरिज कंज्यूमेट होती है तो फुल डावर मिलेगा, और अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं होती है तो हाफ डावर मिलेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिए। ठीक है, अब बताइए किसी कोई सवाल है यहाँ तक, कोई चीज नहीं समझ में आई हो? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी सर, जी सर, बिल्कुल। यस, और कोई कुछ कह रहा था? ठीक है, तो ये पीपीटी मैं आपको भी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, इसका जो डिटेल नोट्स है वो भी आपको आधे एक घंटे में शेयर कर दूंगा। अगर किसी को डाउट भी जाता है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने के बाद हम क्लास जब कर रहे होते हैं तब तो सब चीजें समझ में आती है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो भी कोई डाउट आता है। तो आपका कोई डाउट आए तो जो भी हम लोग क्लास जब करते हैं उसके स्टार्टिंग 5 मिनट में आप लोग मुझसे पूछ लिया करिए, है ना। हम लोग उस टाइम भी डिस्कस कर सकते हैं, या क्लास के आखिरी में भी हम लोग प्रीवियस जो क्लासेस हुई हैं उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउट कभी किसी को नहीं रखना है, आप लोग जो है डाउट जो है वो हमेशा अपना क्लियर करते रहिए। ठीक है, चलिए एवरीवन, तो चलिए आप कल मिलते हैं आप लोगों से क्लास में, एक दूसरा सेशन है फिर हम लोग उसको करके। ठीक है, यू कैन लीव। सर बात ये कि ये हफ्ता सर बस 1 ही घंटा चलेगा ना सर?
और नेक्स्ट ये नेक्स्ट ये ईयर 1 घंटा चलेगा, नेक्स्ट वाला भी 1 घंटा चलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। मतलब वो पेपर एक्स्ट्रा, हाँ, बताइए। सर मतलब वो जो आप पेपर 1 के लिए कही थी सर, इसलिए पूछना था सर इसीलिए। हाँ, वो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे आपके पेपर 1, वो भी 1 घंटा जी चलेगी जी जी। क्लास आपकी, इसके बाद मेरी क्लास के बाद। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, Okay, thanks. ओके भाई, थैंक यू।